اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ اچھا جی ٹیچرز، آج جو ہم بات کریں گے اس کے اندر آپ سے کچھ پہلے تو ہم ڈسکشن میں کچھ کوشچنس ہیں وہ میں پوچھتا ہوں اور پھر میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گا۔ سب سے پہلے تو سوال کہ آپ کو زیادہ وقت جب اسکول لائف میں تھے آپ، تو آپ کو زیادہ وقت گزارنا کہاں اچھا لگتا ہے؟ گھر میں یا اسکول میں؟ کوئی بھی ایک آنسر مجھے رینڈم دے دیں کہ اسکول میں وقت گزارنا اچھا لگتا تھا یا گھر میں؟ اسکول میں اچھا لگتا تھا۔ اچھا اسکول میں اچھا کیوں لگتا تھا؟ کیا ایسے سوچتے تھے کہ جی جو گھر میں نہیں ہے اور اسکول میں اور ہم اسکول جا رہے ہیں؟ کیا ہر ایک کا ویسے ڈفرینٹ آنسر ہو سکتا ہے، لیکن آپ اپنی سوچ بتائیے۔ سر اس لیے کہ اس میں انوالومنٹ زیادہ اچھا لگتا تھا اور ایجوکیشن کی وجہ سے، ایجوکیشن کی یعنی ہم تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اسکول جانے سے ڈر لگنے لگتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ جی نہ جائیں، وہ پیٹ میں درد والی جو ایک سچویشن ہے، کبھی ہوئی ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ جیسے اسکول کا ٹائم آیا پیٹ میں درد شروع ہو گیا؟ کبھی نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے، لیکن ہوتا ہے آپ لوگ ٹیچرز میں ماشاء اللہ سے کہ آپ نے ایسے بچے اکثر کہ جیسے ٹیسٹ کا ٹائم آ رہا ہے تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور جب ٹیسٹ کا ٹائم گزر جاتا ہے تو طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ایسے بچے دیکھیں آپ لوگ؟ بچے دیکھیں، لیکن آپ لوگ ایسے بچے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو کیا وجہ ہے کہ ہم نے ایسے جو بچے ہیں، اچھا ٹیسٹ جس دن اسکول میں ہونا ہو اس دن آپ کو زیادہ مزہ آتا تھا یا جس دن ٹیسٹ نہ ہو اس دن مزہ آتا؟ جب سے ٹیسٹ ہوتا تھا اور اگر وہ ٹیسٹ یاد نہ ہو تو پھر تو اسکول میں جا کے جلدی سے یاد کر لیتے تھے بیٹے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ایلیمنٹ ہے کہ جس دن آپ کو ٹیسٹ اچھے سے یاد ہوگا تو اس دن آپ اسکول میں جا کر انجوائے کریں گے، آپ کو مزہ آئے گا نا، اور پھر اس سبجیکٹ کا انتظار رہے گا کہ وہ ٹیچر آئے آپ کے ٹیسٹ لے۔ اور اگر وہ ٹیچر آئے اور ٹیسٹ نہ لے پھر کیسا لگے گا؟ پھر بہت برا لگے گا۔ سر ٹیچر کو آپ بتایا کرتے آج ٹیسٹ ہے آپ پلیز لے لیں، اور پھر وہ جو دوسرے اسٹوڈنٹ آپ کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ سر وہ بس جنہیں ٹیسٹ نہیں یاد ہوتا تو وہ آپ کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ یس۔ تو اچھا ہم نے اپنے ایجوکیشن سسٹم میں، آج ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، ہمارا ایجوکیشن جو سسٹم ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور بیسکلی میرے جو اساتذہ ہیں وہ ایک جب ہم بی ایڈ ایم ایڈ کر رہے تھے ایک جملہ بار بار ریپیٹ کیا کرتے تھے کہ تعلیم بذات خود مقصد نہیں ہے بلکہ یہ مقاصد کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ تو ہمیں یہ بات تھوڑی سی اس وقت سمجھ آتی تھی اور تھوڑی سی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کے اوپر جب ہم نے غور کیا، کام کیا، تھوڑا اسٹڈی کی، تھوڑی سی ہماری جو میچورٹی ہے وہ بہتر ہوئی، اور پھر جب ایجوکیشن سسٹم کے اندر آ کر بچوں کو دیکھا، ان کے بیہیویئرس کو دیکھا، ٹیچرس کو دیکھا، تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ہم نے جو ایجوکیشن کا میننگ ہے، یعنی بچے کا اسکول میں آنا ایک پروسیس ہے، بچے کا وہاں پر وقت گزارنا ایک پروسیس ہے۔ گھر والے بچے کو کیوں اسکول بھیجتے ہیں؟ کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ ان کی بچے کے اندر کوئی ایسی ایک خامی یا ہے موجود اور کچھ خوبیاں موجود ہیں جس کی صحیح طور پر ڈیولپمنٹ اسکول میں جا کر ہوتی ہے۔ اس وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک کامیاب انسان بنے اور ناکامی سے بچے۔ تو اس سارے سیٹ اپ میں نا ڈس بیلنس کیا ہو گیا؟ ڈس بیلنس ہو گیا کہ ہم نے جو راستہ ہے اسے منزل بنا دیا اور جو منزل ہے اسے بھلا دیا۔ تو اب مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ میرے جو پروفیسرز تھے ایجوکیشن کے وہ یہ جملہ کیوں کہتے تھے کہ تعلیم بذات خود ایک مقصد نہیں ہے بلکہ یہ مقاصد کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ یعنی میں جو آپ سے یہ بھی بات کر رہا تھا تو اس کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ آبزرو کیجئے گا۔ کیا آبزرو کریں گے آپ کہ آپ کے جو بچہ ہے وہ
किसी दिन खुशी महसूस करता है स्कूल जाने में, लेकिन वही बच्चा कभी ऐसा हो जाता है कि वो खुशी नहीं महसूस करता। कब खुशी महसूस करता है? जब उसे वो जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसे बहुत अच्छे से समझ में आ जाए तो वो खुशी महसूस करता है, उसे वो टीचर भी अच्छा लगता है, उसे वो काम करना भी अच्छा लगता है, और बाज़ औक़ात वो उसमें इतना ज़्यादा मगन हो जाता है कि घर में घर वाले शिकायत करते हैं कि जी हमारा बच्चा तो खेलना कूदना छोड़ दिया और वो तो बस इसी सब्जेक्ट में लगा रहता है। तो ये दोनों, एक ऐसा बच्चा है जिसकी शिकायत आती है कि जी ये बस घर में पूरा दिन खेल कूद करता रहता है, पढ़ने बिठाओ तो रोने लग जाता है, या इसका पढ़ने की तरफ शौक नहीं है, इसका मतलब इसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, स्कूल आने में ये जिद करता है। तो ये दो किस्म की पर्सनालिटी हमारे पास स्कूल में देखने को मिलती है। तीसरी किस्म की पर्सनालिटी जो कुछ सब्जेक्ट में अच्छे हैं और कुछ सब्जेक्ट में अच्छे नहीं। तो इस किस्म की जो पर्सनालिटी को आप एनालाइज करेंगे तो इसमें बैलेंस नहीं है। बैलेंस क्या नहीं है कि पेरेंट्स को और टीचर्स को ये पता होना चाहिए कि इस सारे जो प्रोसेस है एजुकेशन का, इसको मीनिंगफुल बच्चे के लिए कैसे बनाना है। बच्चे को ग्रास रूट लेवल से, बिल्कुल इनिशियल लेवल से उसको चीजें इस तरह से देनी है कि वो उन चीजों को बच्चा यूं समझे कि उसने वो चीज दरियाफ्त की है। ठीक है, ऐसे मेथड से पढ़ाना होता है टीचर को कि बच्चे को ये लगने लगे कि उसने आज ये चीज खुद दरियाफ्त की है। तो इसका मतलब ये है कि अगर तालीम का मकसद, तालीम खुद मकसद नहीं है और वो मकासद के हसूल का एक जरिया है, तो जो टीचर है उसका काम एक हेल्पर का होना चाहिए कि वो बच्चे को वो सब्जेक्ट, चाहे वो लैंग्वेज है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो मैथ है, उसे बच्चे को इस तरह से ट्रेन करना चाहिए कि बच्चे को ये लगने लगे कि वो ये चीजें खुद ब खुद ऑब्जर्व कर रहा है, खुद लर्न कर रहा है, ताकि उसकी जो खुशी का एलिमेंट है वो बाकी रहे। अगर आपके अंदर से उसकी खुशी के एलिमेंट को आप निकाल देंगे और वो बहुत अच्छा काम भी कर रहा है, पढ़ रहा है, मुसलसल पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, टेस्ट भी ठीक से याद कर रहा है, वो तालीम नहीं हासिल कर रहा। उसको अगर आपने ये उसके माइंड में प्रोजेक्ट कर दिया है कि आप एजुकेशन हासिल नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, नाकाम हो जाओगे और बस ये करना है, इस साल तुम्हें अच्छे नंबर लेकर आने हैं, अगर इस किस्म की जो इन्वायरमेंट में बच्चे को डाल देंगे तो बच्चा जितना भी अच्छा होगा एक वक्त आएगा कि वो रटाफिकेशन की तरफ आ जाएगा और फिर वो चीज़ों को बस सिर्फ चंद नंबरों के लिए हासिल करने की कोशिश करेगा। उसकी जो अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो क्रिएटिवनेस है, वो खत्म होकर रह जाएगी। वो A1 ग्रेड तो ले आएगा लेकिन वो एक खुश और मुतमईन बच्चा नहीं रहेगा। और अगर आप किसी कौम के अंदर देखते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो खुश भी हैं और मुतमईन भी हैं, तो पाकिस्तान में जो उसका रेशियो है वो बहुत अलार्मिंग लेवल तक लो है। पाकिस्तान में बहुत अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी मौजूद हैं, इंजीनियर भी मौजूद हैं, पायलट भी मौजूद हैं, लेकिन क्या वो अपने काम से मुतमईन हैं, खुश हैं? क्या वो अपने जब काम सुबह जब उठते हैं तो अपने काम पर खुशी से जाते हैं? तो हम ये देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली एक अच्छा डॉक्टर हो, अच्छा इंजीनियर हो, अच्छा टीचर हो, अच्छा लॉयर हो, लेकिन वो अपने काम को बस काम समझ के कर रहा है। उसकी जो क्रिएटिवनेस है वो इस एनवायरनमेंट के अंदर मुसलसल नंबरों के पीछे भाग भाग के वो खत्म होकर रह गई है। और ये हम असातिज़ा का भी इसके अंदर एक बड़ा हाथ मौजूद है कि बच्चे की क्रिएटिवनेस को खत्म कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमने तालीम को मकसद बना दिया और A ग्रेड लाना, A1 ग्रेड लाना, परसेंटेज लाना, इसके ऊपर फोकस कर दिया। पहले तो आप ये सोच समझ लें कि जो निज़ाम तालीम आपके मुल्क में मौजूद है, ये निज़ाम तालीम इस मुल्क के अंदर कब से चल रहा है? जो इस वक्त हम ये जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो भाई जब ईस्ट इंडिया कंपनी बड़े सगीर पाक और हिंद में आई तो उनका काम, उनका मकसद बिजनेस करना था और उन्हें बिजनेस करने के लिए अच्छे से अच्छे मुलाजिम चाहिए थे, अच्छे से अच्छे मुलाजिम
जिन्हें अंग्रेजी आती हो और वो इंस्ट्रक्शन को सुने और फॉलो करें और आगे से सवाल न करें। तो उन्होंने एक ऐसा निज़ाम तालीम दिया जो उन्हें अच्छे से अच्छे मुलाजिम प्रोड्यूस करके थे, यानी कि तालीम हासिल करने के बाद मकासद का तयन करना ये किसी कौम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन पूरी कौम नौकरियों के लिए अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में और ऐसे एजुकेशन सिस्टम में डालती है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि मेरे बच्चे को अच्छी नौकरी मिल जाए, मेरा बच्चा अफसर भी बन जाएगा तो वो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का एक मुलाजिम होगा, पुरजा होगा। तो मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि भाई आप अपने लिए क्या पसंद करेंगे, कि आप किसी बड़ी मशीनरी के एक छोटा सा पुरजा हो कि जब तक आप वहाँ काम कर रहे हैं ठीक है, और जब आप काम करना छोड़ दें वो वहाँ से वो पुर्जा निकाले फेंकें और उसकी जगह नया पुर्जा आप वो फिट कर दें, यानी एक बड़ी मशीनरी का पार्ट बनना वो ज़्यादा बेहतर है, या एक पूरी छोटी सी मशीन हो, चाहे वो एक साइंस में जैसे हम मशीन की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो एक कैंची भी एक सेल्फ एक मशीन है, ठीक है, छुरी भी एक सेल्फ एक मशीन है, एक सुई भी एक सेल्फ एक मशीन है, लेकिन उसकी इंडिविजुअल हैसियत है। तो एक बहुत बड़े ट्रक का कोई छोटा सा पुर्जा बनने से तो बेहतर है, मैं तो अपने लिए ये बेहतर समझता हूँ कि मैं एक छोटी सी साइकिल ही हूँ लेकिन इंडिविजुअल हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है। तो ये चीजें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर उजागर करना, उन्हें इस तरफ लेकर आना, उन्हें इस बात पर मोटिवेट करना कि वो अपनी इंडिविजुअलनेस को बरकरार रखें, कायम रखें, और तालीम को मकसद ना बनाएं बल्कि तालीम हासिल करके अपनी जिंदगी के मकसद को वो खुद डिफाइन भी कर सकें और हासिल भी कर सकें। तो यकीनन फिर इस कौम को आप ऐसे बच्चे देंगे जो इस कौम की तरक्की में भी किरदार अदा करेंगे और साथ ही साथ एक अच्छे इंसान भी बनेंगे। वो एक अच्छे डॉक्टर होने के साथ एक अच्छे इंसान भी होंगे, एक अच्छे इंजीनियर होने के साथ एक ईमानदार इंसान भी होंगे, वो एक अच्छे भाई भी होंगे, बेटा भी होगा, बेटी भी होगा। तो यानी कि तालीम को इम्पोज नहीं करना है बच्चे के ऊपर। कि आपसे अगर जब मैं इस सेशन से पहले, इस लेक्चर से पहले जब बात कर रहा था तो मुझे यही फील हुआ, जो मुझे भी अपनी जिंदगी में ये फील हुआ कि हम तालीम से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, हमें नाकामी का खौफ है, हमें कामयाबी हासिल ना करने का जो है वो एक खौफ है, और इस खौफ की वजह से हमें जो चीज़ सही करनी थी वो भी नहीं कर पा रहे, और जो कर रहे हैं वो ठीक भी है तो उससे हमें कोई खुशी हासिल नहीं होगी। एट द एंड यही बात मैं आपसे कहूँगा कि आप जो स्टूडेंट्स आपके पास हैं वो बिल्कुल ग्रास मतलब इन जो प्ले ग्रुप है वहाँ से ही बच्चे के अंदर उन मेथड्स को स्टडी करें कि जो बच्चे को एजुकेशन की तरफ इस तरह से लेकर आए कि बच्चा खुशी महसूस करे। बच्चे को जिस दिन कोई नई चीज सीखने को ना मिले या किसी चीज का नया पहलू सोचने का को काम उसके पास ना हो तो वो बच्चा बोर हो जाए, वो कहे कि जी आज मजा नहीं आया।